Welcome to Manual Education. Welcome to this video. So in this video we are going to discuss CLAT legal aptitude section and basically about the tort. So now here we are gonna solve some questions of a legal aptitude from the tort subject. Moving ahead, here we have our social media handles. Do follow us on them. You can follow us on the Instagram and the Facebook. You can also join Telegram group and WhatsApp group. Don't forget to subscribe the YouTube channel and do share this video with your friends so they can also understand how to prepare for the legal aptitude section. Here we have a launched offline and online batches for 2025 and 26. If you are Mumbai based, you can directly visit to our centers to start your preparation with us, or if you are not Mumbai based, you can join our online live classes. All the details and the link are given in the description. So now here, legal aptitude. What exactly the legal aptitude and reasoning? Legal aptitude and reasoning is what somehow you have to understand the passage and legal principle given in the passage somewhere, and accordingly you have to answer the questions. So this is all the legal aptitude and the legal reasoning, nothing else. Then tort is what? It's governing the civil wrong. Civil wrongs के regarding जितने भी punishments है, जितने भी compensation, जितने भी laws है या फिर जितने भी rules and regulations है, वो कौन govern करता है? Tort law govern करता है. Tort is a civil wrong for which the remedy is a common law है. Action for unliquidated damages which is not exclusively the breach of contract or the breach. Now see, tort is not a breach of contract or the breach of trust. Guys, do remember this. Tort is not a breach of contract or the breach of trust or other merely equitable obligations. Now, method to solve, important is read the passage thoroughly. Important है passage को thoroughly read करना. You have to note important points, important legal principles. Then you have to move to the what relating to that fact, to the principles and all the related points. It is somehow like the RCs. RC में जैसे हम लोग questions को solve करते हैं, only on that particular point आपको यहाँ पर भी work करना है. Now pay attention to the important principles and the fact given in the passage. जो भी passage में important facts दिए हुए हैं, important principles दिए हुए हैं, focus on that. Try to keep your opinions outside the purview of the passage. Guys, do understand, passage में जो दिया होगा उसके above, उसके beyond जाकर कुछ नहीं सोचना है. Your moral understanding, your principles, all outside the purview of the passage. You have to be stick to the information given in the passage, and accordingly you have to answer the questions nearby the under the passage. Now, stick to the principle and fact given in the passage. Don't change your facts. जो फैक्ट आपको दिए हैं, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, उस इन्फॉर्मेशन को ही यूज करना है टू आंसर द क्वेश्चन. नाउ फर्स्ट सॉल्व इजी वन एंड देन हार्ड वन. दिस इज अ सिंपल आइडिया टू मिनिमाइज योर टाइम कंजम्पशन, बिकॉज अगर आप हार्ड वन को पहले अटेम्प्ट करना चाहते हो देन इट विल समवेयर आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर देगा, या फिर आपको नहीं समझ में आता है देन यू विल गेट लाइक दिस कि बाबा ओके नहीं हो रहा है तो आई वुड मूव फॉरवर्ड, ये होता है. बट डोंट डू लाइक दिस. सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार जब रीड करते हो सो यू वुड गेट एनालाइज कि बाबा हाँ ये क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट है, आई कांट लाइक मैं अभी ये नहीं कर सकता, सो मैं सीधा क्या करूंगा, मूव करूंगा टू द सिंपल वन. आई विल डू दैट एंड आफ्टरवर्ड आई विल केम बैक टू द हार्ड वन. आई विल ट्राई फॉर इट. वहां पे भी आपको एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम बाउंड, उसको रेस्ट्रिक्शन देना है, एक रेस्ट्रिक्टेड टाइम बाउंड रखना है एंड उसी बेस पे आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. नेक्स्ट, now here is a passage. harm suffered voluntarily does not constitute a legal injury. देखो, harm suffered होता है जो voluntarily होता है. voluntarily मतलब क्या, जो खुद से हुआ है, खुद उसके लिए अपने कंसेंट दिया हुआ है, and it does not constitute what legal injury. now this is a legal injury. now is not actionable. ये actionable नहीं है because it does not constitute the legal injury. this principle is embodied in the maxim volenti non fit injuria. this is an important maxim guys. पैसेज में भी इंपॉर्टेंट है एज अ गिवन इन द पैसेज. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बट वॉलेंटी नॉन फिट इंजूरिया इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द पर्सपेक्टिव ऑफ मैक्सिम. तो मैक्सिम के लिए भी मैक्सिम पार्ट जो होता है लीगल में वो भी यहाँ पर भी काम आता है. तो इसका मीनिंग होता है कि जहाँ पर वॉलेंटरीली आपको आपने एक इंजरी आपको वॉलेंटरीली हो गई, आपके खुद का एसेंट था वहाँ पर, सो दैट वुड नॉट like that would not be the reason for the legal actions. ठीक है, वो आप वहाँ पे कोई actionable claim नहीं कर सकते because your assent is there, your assent over there for that specific injury. A person cannot complain of a harm to chances of which he has exposed himself with his free consent and free will. Just I said that कि जब आपका खुद का ही consent है, खुद की ही free will है to that harm, then it would not constitute any legal injury for actionable claim. Then
The maxim voluntary not injuria is founded on a good sense and justice. A person who has invited or the assented to an act being done towards him cannot, when he suffers from it, complain of it as a wrong. यहाँ पे बोला है a person who has invited or assented to an act being done towards him cannot when he suffers from it. मतलब क्या होता है कि अगर आपने खुद ने ही उसको कंसेंट दिया है, खुद ने ही उसको इन्विटेशन दिया खुद के पास आने के लिए, उस इंजरी को आपके पास आने के लिए आपने खुद ने ही उसको इन्विटेशन दिया, एसेंट दे दिया, मंजूरी दे दिया, मतलब एक्सेप्टेंस दे दिया, देन यू वुड नॉट कंप्लेंट ऑफ इट, आप उसको कंप्लेंट नहीं कर सकते. देन द मैक्सिम प्रीसपोजेस अ टॉर्टियस एक्ट बाय डिफेंडेंट. टॉर्टियस एक्ट बाय डिफेंडेंट मतलब यहाँ पर खुद ही डिफेंडेंट जो होता है उन, मतलब मैक्सिम क्या करता है, प्री सपोज कर लेता है कि जो टॉर्टियस एक्ट जो है डिफेंडेंट हुआ है उसको प्री सपोज कर लेता है कि ओके ये तो खुद से ही कर दिया, मतलब यहाँ पे खुद जो पर्सन जो प्लेंटिफ है वो खुद ही इसके अंदर कंसेंटी है, तो फिर कोई इशू ही नहीं है, मतलब वो टॉर्टियस एक्ट तो कंसिडर हो गया. फिर नाउ द मैक्सिम अप्लाइज इन द फर्स्ट प्लेस टू इंटेंशनल एक्ट्स विच वुड अदरवाइज बी टॉर्टियस. मतलब in the first place the maximum applies in the first place to intentional act. intentional act होने चाहिए which would otherwise be tortious. मतलब यहाँ पे देखो ये intentional act का मतलब सिर्फ intention से नहीं हुआ, यहाँ पे एक indirect point है कि जहाँ पर consent ना हो, plaintiff का खुद का concept ना हो, consent ना हो, उस act को आप tort बोल सकते हो, because वहाँ पे जो है person को legal injury suffer करनी पड़ती है. It is no answer to claim made by workman against his employer for injury caused through a breach by employer of a duty imposed upon him by statute. But where the negligence or a breach of statutory duty is on a part of an employee of a plaintiff who knowingly accepts the risk flowing from such a breach, and employer defendant is not guilty of negligence or a breach of statutory duty, the defense of voluntary not fit injuria is available to the defendant. Guys, what exactly they mean by this passages? First of all ये फर्स्ट लाइन थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बाकी तो नेक्स्ट पार्ट इजी है. यहाँ पे देखो क्या बोला है, इट इज नो आंसर टू क्लेम मेड बाय अ वर्कमैन अगेंस्ट हिज एम्प्लॉयर फॉर इंजरी कॉज थ्रू अ ब्रीच बाय एम्प्लॉयर ऑफ अ ड्यूटी इम्पोज्ड अपॉन हिम बाय अ स्टैट्यूट. मतलब क्या होता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा क्लेम जो कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी खुद एम्प्लॉयर ने ब्रीच की है, मतलब एम्प्लॉयर के ऊपर एक ड्यूटी थी, ठीक है, एम्प्लॉयर के ऊपर एक ड्यूटी थी, उसकी वजह से कोई इंजरी, कोई लीगल इंजरी जो है वो वर्कमैन को हुई है, एंड इन दैट केस एम्प्लॉयर इज द लाइबल. ठीक है, एम्प्लॉयर इज द लाइबल, बट इफ देयर इज नो ड्यूटी ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, देयर इज नो ड्यूटी, मतलब कोई ड्यूटी नहीं है एम्प्लॉयर के पार्ट पे, बट यहां पर एम्प्लॉय के पार्ट पे ड्यूटी है कि ही शुड बी केयरफुल व्हाइल द वर्किंग. तो अगर वो एम्प्लॉय खुद ही नेग्लिजेंट है, खुद की ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी हो गई, उसके ऊपर स्टैट्यूटरी ड्यूटी था, ही शुड बी अवेयर ऑफ, ही शुड बी केयरफुल व्हाइल वर्किंग. सो इन दैट केस एम्प्लॉय वुड नॉट क्लेम एनीथिंग इन रिटर्न ऑफ दैट इंजरी, बिकॉज वहां पर उस रिटर्न इंजरी के लिए खुद उसने ही कंसेंट दिया. नाउ हियर अप्लाइज द प्रिंसिपल और द मैक्सिम दैट कॉल्स दैट वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, मतलब खुद की ही कंसेंट है तो फिर आप उसके लिए कोई एक्शनेबल क्लेम नहीं ले सकते. नाउ सेकंड पॉइंट सेज अंडर एन एक्सीजेंसी कॉज्ड बाय डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल मिसकंडक्ट कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली फेस्ड रिस्क even of a death, whether the person endangered is one to whom he owes a duty of protection as member of his family or is a mere stranger to whom he owes no such a special duty. The rescuer will not be deprived of his remedy merely because the risk which he runs is not the same as that run by the person who he rescues. But where there is a no need to take any risk, thus a person suffering harm in doing so cannot recover. गाइस अभी एक एक पार्ट को देखो, जब ऐसे ये जो है ना, ये प्योर लॉ टर्म है, यहाँ पे प्योर लॉ यूज किया हुआ है, दिस इज अ रियल लैंग्वेज ऑफ लॉ. ठीक है, अब इसको समझने के लिए आपको सेंटेंस को ब्रेक डाउन करना होगा लाइक दिस. अंडर एन एक्सीजेंसी कॉज्ड बाय डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल मिसकंडक्ट, मतलब अगर कोई एक्सीजेंसी कॉज्ड बाय, कोई भी एक्सीजेंसी जो है वो डिफेंडेंट के रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, मिसकंडक्ट की वजह से होती है. नाउ यहाँ पर एक्सीजेंसी का सिंपल मतलब होता है गाइस, कोई भी एक इमरजेंसी या फिर एक नीड अराइज हो जाती है बिकॉज ऑफ डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल मिसकंडक्ट कॉन्शियसली और एंड डेलिबरेटली फेस्ड रिस्क. कॉन्शियसली का मतलब उसको पता है,
सी ही एक्नॉलेज दैट कि उसको पता है, कॉन्शियस मतलब क्या, खुद को पता होना, एंड डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर इंटेंशनली फेस द रिस्क इवन ऑफ डेथ, डेथ भी उसने फेस कर, मतलब डेथ तक जाने तक उसने जो है वो रिस्क फेस कर लिया बिकॉज ऑफ अ रॉन्गफुल मिसकंडक्ट ऑफ अ डिफेंडेंट्स, ठीक है। वेदर द पर्सन एंडेंजर्ड इज वन whom he owes a duty of protection, मतलब क्या बोला है, वेदर द पर्सन एंडेंजर्ड इज वन हु टू whom he owes a duty of a protection, मतलब अगर कोई ऐसा पर्सन है जो उसका फैमिली मेंबर हो, अब फैमिली मेंबर के लिए उसकी तो ड्यूटी बनती है कि ही शुड प्रोटेक्ट हिम, राइट, एंड समवेयर देयर इज अ स्टैट्यूटरी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट समवन, इन दैट केस ऑल्सो अगर वो पर्सन डिफेंडेंट के लिए खुद कहीं रिस्क लेता है कॉन्शियसली एंड डेलिबरेटली, ठीक है। नाउ एज अ मेंबर ऑफ हिज फैमिली और एज अ मेयर स्ट्रेंजर टू हुम ही ओन्स नो सच अ स्पेशल ड्यूटी, या फिर कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, इन दैट केस उसके ऊपर कोई स्पेशल ड्यूटी नहीं थी। सो व्हाट नेक्स्ट, द रेस्क्यूअर विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब रेस्क्यूअर मतलब कौन, वो डिफेंडेंट, द रेस्क्यूअर मतलब कौन, वो डिफेंडेंट, विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिम, यहां पर रेस्क्यूअर का मतलब होता है वो प्लेंटिफ, जिसने वो उसके डिफेंडेंट के अगेंस्ट जो केस किया होगा वो प्लेंटिफ होगा, यहां पर रेस्क्यूअर विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज रेमेडी merely because the risk which he runs is not the same as the run by a person who he rescues, मतलब देखो यहां पर जिसको रेस्क्यू किया जा रहा है वो डिफेंडेंट है, रेस्क्यू किया जा रहा है वो कौन है, डिफेंडेंट है, बिकॉज मिसकंडक्ट किसने किया, डिफेंडेंट ने किया, और वो रिस्क में है तो उसको बचाया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है। रेस्क्यूअर कौन है, रेस्क्यू करने वाला कौन है, तो प्लेंटिफ है, डू अंडरस्टैंड, रेस्क्यू करने वाला कौन, प्लेंटिफ है। अगर डिफेंडेंट की गलती की वजह से कुछ भी प्रॉब्लम होता है, इफ डिफेंडेंट इज इन डेंजर एंड देन प्लेंटिफ ट्राइज टू रेस्क्यू हिम, इन दैट केस अगर प्लेंटिफ को कोई भी हार्म होता है, देन व्हाट हैपेंस इज द रेस्क्यूअर विल नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ, मतलब प्लेंटिफ जो है will not be deprived of his remedy merely because the risk which he runs is not the same as that run by the person who he rescues, मतलब डिफेंडेंट के ऊपर ज्यादा रिस्क है, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि प्लेंटिफ ने कुछ कम रिस्क लिया तो वो उसका राइट जो है, जिसको रेमेडी मिलना चाहिए, वो राइट उसका जो है वो लाइक रिलिंक्विश हो जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, वो रहेगा। देन बट वेयर देयर इज अ नो नीड टू टेक एनी रिस्क, द पर्सन सफरिंग हार्म is doing so cannot recover। अब समझो एक केस था जिसके अंदर डिफेंडेंट रिस्क में था, उसको बचाना जरूरी था, there is a duty upon the plaintiff, then it would be a morally and it would be a statutory whatever it is, but अगर समझो इतना बड़ा रिस्क नहीं है like this, अब ये समझो डिफेंडेंट जो है वो मतलब कुछ काम कर रहा था, ठीक है, और कंपनी में काम कर रहा था, फैक्ट्री में काम कर रहा था, गलती से उसका वो कहीं स्लिप हो जाता है और गिर जाता है, इन दैट केस प्लेंटिफ को जरूरत नहीं थी, मतलब वो अगर गिर भी जाता तो इतना कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि वो थोड़े से डिस्टेंस पे गिरने वाला था, कुछ ज्यादा होने वाला नहीं था, वहां पर इतनी रिस्क नहीं थी डिफेंडेंट के लिए, बट इन दैट केस प्लेंटिफ ने जानबूझकर रिस्क लिया, और मतलब ही इज लाइक कि बहुत ज्यादा पैनिक करने के बाद अगर ओवर रिएक्ट करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज वहां पे जितना नीड है उतना ही रिस्क लो, ये है। अगर प्लेंटिफ यहां पर ओवर रिस्क ले लेता है, ओवर ज्यादा बर्डन ले लेता है, तो उसके लिए वो रिकवरी नहीं मांग सकता, जितना रिस्क लेना था उतना लिया है, दैट इज ओके। चलो नाउ कमिंग टू द, अभी देखो, अभी ये जो पैराग्राफ है ना, ये पैराग्राफ प्योरली लॉ लैंग्वेज से लिखा हुआ है, टोटल लाइक अ कंप्लीट टॉट का लॉ लिखा हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे वक्त पे आपको क्या करना है, थोड़ा सा ज्यादा केयरफुल रहना है। दिस इज ऑफ अ मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल, ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन है। नाउ हियर इफ यू रीड दिस पैराग्राफ, लाइक आप ऐसे रीड करोगे ना, अंडर एन एक्सीजेंसी कॉज्ड बाय द डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल मिसकंडक्ट, तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बिकॉज ये लैंग्वेज ही ऐसी है कि जिसको आपको ब्रेकआउट करना पड़ता है, वर्ड बाय वर्ड समझना पड़ता है, तब जाके आप आगे क्वेश्चंस को समझ पाओगे। नाउ अगर इन केस यहाँ पर अभी मैं तो आपको बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, तो मुझे नोट नहीं, मतलब मैं यहाँ पे अलग से नोट नहीं कर सकता, बट आप जब एग्जाम में ये सब करोगे तो आपको नोट डाउन करना होगा कि पर्टिकुलरली हर पैराग्राफ में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पैराग्राफ में क्या दिया था, सेकंड पैराग्राफ में क्या है, थर्ड पैराग्राफ, तो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट में नोट डाउन कर लो, जिससे कि वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त आपको हेल्प करेंगे। ओके, देन नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पर थर्ड पॉइंट भी है, टू कवर अ केस ऑफ नेग्लिजेंस द डिफेंस ऑफ बेसिक ऑफ मैक्सिम, बेसिस ऑफ द मैक्सिम मस्ट बी बेस्ड ऑन इम्प्लाइड अग्रीमेंट। देखो यहाँ पे क्या बोला है, टू कवर ऑफ अ केस, टू कवर अ केस ऑफ नेग्लिजेंस द डिफेंस ऑन द बेसिस ऑफ अ मैक्सिम मस्ट बी बेस्ड ऑन इम्प्लाइड अग्रीमेंट
whether amounting to contract or not. अब जो वो मैक्सिम है वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरी या जो मैक्सिम है, इस मैक्सिम को एज अ डिफेंस यूज करने के लिए इट शुड बी बेस्ड ऑन इम्प्लाइड अग्रीमेंट वेदर अमाउंटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट और नॉट. इम्प्लाइड अग्रीमेंट हो सकता है, देखो अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, तो इम्प्लाइड अग्रीमेंट होना चाहिए, बट ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो, ऐसा नहीं है, नेसेसरी नहीं है. नेसेसरी ये है कि इट शुड बी ओनली इम्प्लाइड अग्रीमेंट. The defense is available only when a plaintiff freely and voluntarily will, with full knowledge of the nature and the extent of a risk, impliedly agreed to incur it and to waive any claim of for injury. देखो यहाँ पर क्या बोला है, अगर एक प्लेंटिफ जो है, मतलब एक पर्सन जो है दूसरे पर्सन को बचाने के लिए या फिर इन एनी अदर केस जो भी रिस्क हैंडल कर रहा है, जो भी रिस्क को बेयर करने की कोशिश कर रहा है, अगर वो रिस्क बेयर करने, मतलब वो रिस्क जो बेयर कर रहा है ना, उस रिस्क को बेयर करते वक्त उसको कितना डैमेज होने वाला है, he knows that it will cause a death for him or it will cause a major injury for him. Now in that case he voluntarily assent to that risk, he voluntarily consented to that risk, and in that case he is in that implied agreement कि मैं ये रिस्क खुद ले रहा हूँ. ये implied agreement का मतलब क्या होता है, by the action. तो by the action he himself assented to that particular risk. But when the plaintiff has no choice, when the notice is given at this stage, when it is beyond the ability of a plaintiff to make a choice, there can be no implied agreement. The defense on basis of the maxim must fail. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, but when the plaintiff has no choice or when notice is given at a stage when it is beyond the ability of a plaintiff to make a choice. Now to understand guys, अब समझो ऐसा कुछ एक इंसिडेंट है जिस इंसिडेंट के अंदर जो प्लेंटिफ है, पहली तो चीज यहाँ पे प्लेंटिफ की वॉलंटरी प्लेंटिफ का एसेंट होना चाहिए. पहली चीज यहाँ पे क्या पॉइंट था कि प्लेंटिफ का जो है एसेंट होना चाहिए. एसेंट का मतलब कंसेंट होना चाहिए, कंसेंट का मतलब एक्सेप्टेंस होना चाहिए फॉर दैट रिस्क. This is a basic condition to use that defense of voluntary not fit injuria. This is the first and foremost important defense. एक क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया हो गया और ये आपका डिफेंस वाला पार्ट हो गया जो आप मैक्सिम यूज करोगे फॉर दैट डिफेंस. नाउ व्हाट ऑथर एक्सप्लेन्स इन द पैसेज इन दैट पार्ट कि यहां पर समझो ऐसा कोई एक इंसिडेंट है जिस इंसिडेंट के अंदर प्लेंटिफ के पास चॉइस करने के लिए टाइम ही नहीं है. ही डोंट हैव दैट टाइम टू टेक दैट डिसीजन कि मैं ये डिसीजन ले पाऊं लाइक दिस कि अगर मेरा कोई समझो कलीग है, मेरे साथ एक कोई एम्प्लॉय काम करता है, मैं भी उसी फैक्ट्री में काम करता हूं, एंड इफ दैट पर्सन समवेयर कुछ एकदम ही शॉर्ट नोटिस पे लाइक विद इन अ सेकंड आई हैव टू डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू एंड व्हाट नथिंग आई हैव टू डू, एंड इन दैट केस आई डिड दैट. मैंने वो रिस्क ले लिया, ऑन दैट बेसिस मैंने वो रिस्क ले लिया, बट वो रिस्क जो मैंने लिया है वो रिस्क मैं कब ले रहा हूं, ऑन दी लाइक उसने मुझे इनविटेशन दिया है या फिर सामने वाले ने मुझे इनवाइट किया है, मुझे उसने नोटिस दिया है इस चीज का. अब जो है ना ये वॉलेंटरी नहीं है, अब ये मैंने किसी के कहने पे किया है, किसी के नोटिस देने पर किया हुआ है. सो नाउ इट इज नॉट अ वॉलेंटरी. सो वेयर देयर इज अ नॉट वॉलेंटरीनेस, अगर वॉलेंटरीनेस खत्म कर दो तो सिंपल ये जो आपका जो मैक्सिम का जो डिफेंस है ना वो एंड हो जाता है, वो डिफेंस ही एंड हो जाता है. दैट इज द सिंपली मीनिंग ऑफ द थर्ड पॉइंट. नाउ फोर्थ वन देखो, this the maxim will also not apply when the act relied upon is done because of psychological condition which the defendant's breach of duty had induced. देखो यहां पर क्या बोला है कि the maxim will not apply. maxim will not apply मतलब ये डिफेंस कब काम नहीं होगा, जब ही when the act relied upon is done because of psychological condition which the defendant breach of duty has induced. एक ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन जो है वो डिफेंडेंट की ब्रीच ऑफ ड्यूटी की वजह से आ गई, देन डिफेंडेंट जो है वैसा डिफेंस नहीं ले सकता कि भाई प्लेंटिफ ने जो है खुद कंसेंट दे दिया. नाउ डिफेंडेंट वुड नॉट टेक दैट डिफेंस. देखो डिफेंस कौन लेता है गाइस, डू अंडरस्टैंड, ये डिफेंस जो है वो हमेशा कौन लेगा, डिफेंडेंट लेगा, बिकॉज डिफेंडेंट इज फॉर द डिफेंस, राइट. तो वो जो वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरी का जो डिफेंस है वो हमेशा कौन लेगा, डिफेंडेंट लेगा. सो ये जो है ना ये चार केसेस यहाँ पर दिए थे कि कहाँ और कब हमें वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरी को अप्लाई करना है, एज अ डिफेंस डिफेंडेंट यूज कर सकता है और कहाँ नहीं कर सकता. ओके, कम टू द क्वेश्चन नंबर 1.
फर्स्ट मिस्टर ए वॉज द ओनर ऑफ अ कार एंड ही हैड ड्राइवर मिस्टर डी. सी गाइस, यहाँ पर एक ओनर ऑफ द कार है, दैट इज मिस्टर ए. मिस्टर ए इज व्हाट? ओनर ऑफ द कार. ठीक है. एंड देन मिस्टर डी इज व्हाट? मिस्टर डी इज ड्राइवर of a car. Next, on January 19, 2021, Mr. A and Mr. D were traveling in their car, wherein Mr. A got down at a restaurant and told Mr. D to take the car back to the Mr. A's bungalow. उन्होंने क्या बोला मिस्टर डी को कि आप जो है कार जो है बंगलो की तरफ, मतलब घर की तरफ लेके जाओ. मिस्टर डी वॉज फिलिंग द पेट्रोल टैंक ऑफ द कार. टू स्ट्रेंजर्स मिस्टर बी एंड सी टुक अ लिफ्ट फ्रॉम मिस्टर डी इन हिज कार. वहां पे क्या होता है कि मिस्टर डी जो है पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल फिलअप करते हैं, बट इन दैट प्रोसेस वहां पर क्या होता है कि बी एंड सी अराइव्ड हो जाते हैं और वो जो है लिफ्ट मांग लेते हैं. अब देखो यहाँ पे उन्होंने खुद से लिफ्ट मांगी है. द कार वेंट अहेड एंड राइट साइड ऑफ फ्रंट व्हील ऑफ द कार फ्लू अवे. द कार टॉपल्ड एंड मिस्टर डी एंड सी वर थ्रोन आउट. मिस्टर डी एंड सी क्या होता है? थ्रोन आउट हो जाते हैं, मतलब कार से बाहर आ जाते हैं. अब कार से बाहर थ्रोन आउट होता है मतलब एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे सिंपली. मिस्टर सी सस्टेन्ड सेवर इंजरीज एंड अल्टीमेटली डाइड ड्यू टू दोज इंजरीज ऑन द जनवरी 2021. मिस्टर सी को भी इंजरीज हो जाती है और मिस्टर सी क्या हो जाते हैं? डाइड. मिस्टर सी डाइड. मिस्टर डी एंड सी जो है वहाँ पे जो है कार के बाहर आ जाते हैं, मतलब एक्सीडेंट के वक्त, और मिस्टर डी भी इंजर्ड हो जाते हैं, सी भी इंजर्ड हो जाता है. और अब ऑब्वियसली मिस्टर बी भी तो इंजर हुआ ही होगा. तो सिंपल, मिस्टर बी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मिस्टर सी क्लेम्ड कंपेंसेशन फ्रॉम ए एंड मिस्टर डी. अब ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर बी एंड सी खुद वॉलंटरीली उनके पास गए थे टू टेक दैट लिफ्ट. मिस्टर डी विल बी लाइबल टू पे द कंपेंसेशन. गाइस नो, बिकॉज यहाँ पर वो वॉलंटरीली गए थे, खुद जाके उन्होंने वो रिस्क बेयर करने के लिए कंसेंट दे दिया था, तो मिस्टर डी विल नॉट बी लाइबल. ओके, देन सेकंड बी पॉइंट देखो क्या लिखा है. Voluntary not with injuria will be applicable and no compensation can be claimed. Guys, do remember that B and C खुद गए थे voluntarily, right? तो मतलब यहाँ पर voluntarily गए थे. अब इस केस में plaintiff कौन होगा? Plaintiff would be B and C and defendant would be D. तो defendant के पास क्या voluntary not with injuria का डिफेंस होगा? Yes होगा, because B and C खुद जाकर वहां पे लिफ्ट मांग रहे थे. That means they consented to take that risk with the D. So that means option B would be the right answer. चलो आगे जाके देखते हैं. Voluntary not fit injuria will not be applicable. Guys, ऐसा नहीं हो सकता, will not be applicable नहीं आएगा, तो यहाँ पर C gets eliminated. Mr. A and D both will be liable to pay compensation. Guys, no, they would not be liable to pay compensation. So option answer B should be your correct answer. Next question. Rama was a spectator at motor car race being held on track owned by defendant company. During the race, there was a collision between two cars. One of the car was thrown among the spectator, thereby injuring Rama severely. Which of following statement is correct? देखो, रामा खुद गया था मोटर कार रेस देखने के लिए और वहां पर क्या होता है, दो कार का कोलिजन हो जाता है. कोलिजन इन द सेंस एक्सीडेंट हो जाता है आपस में, और उसकी वजह से वो जो एक कार है वो स्पेक्टेटर के ऊपर आ जाती है, उसमें रामा को इंजरी सफर करनी पड़ती है. अब यहाँ पर क्या होगा, आगे स्टेटमेंट क्या है वो रीड करो. ऑप्शन ए सेज रामा इम्प्लाइडली टुक द रिस्क ऑफ सच इंजरी एंड अ डेंजर बीइंग इनहेरेंट इन स्पोर्ट which any spectator could foresee. The defendant was not liable. ठीक है, this would be the option answer. Option B says it was a negligence on part of defendant and voluntary not fit injuria will be applicable. देखो यहाँ पर बोला है it was a negligence on part of the defendant, तो ये खुद negligence नहीं था, रामा का negligence नहीं था. He consented over there but he is not a negligent person over there, तो option B gets eliminated. Rama did not take the risk of such injury and she only consented to watching the race and hence defendant was liable. No, ये भी नहीं होगा because Rama did not take the risk of such injury बोलना गलत होगा. रामा ने खुद वहां पे जाके टिकट लिया होगा, वो खुद मैच देखने गया तो वहां पे उन्होंने ही रिस्क लिया, वहां पे तो उसको खींच के कोई जबरदस्ती फोर्सफुली तो लेके नहीं गए थे. रामा वॉज अ नेग्लिजेंट. नो, अगेन दिस वुड बी अ रॉन्ग. नेग्लिजेंट तो नहीं होगा, तो ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. ओके, so guys, now you're getting the ideas कि कैसे हम questions को solve कर रहे हैं. And if you're like if you're understanding the session and if you're getting some ideas to solve the taught questions or the legal aptitude question, do share this video and like. Don't forget to comment. Now, which of the following is correct about the consent in voluntary not fit injuria? देखो क्या correct है about the consent in the voluntary not fit injuria, मतलब consent के according हमें बात करनी होगी.
knowledge of a risk does not always amount to consent. knowledge of a risk does not always amount to consent. यहाँ पर बोला गया है कि knowledge जो होता है वो हमेशा consent हो, ये जरूरी नहीं. चलो, knowledge of a risk always not precede a consent. always not precede a consent बोलना गलत है. Option B gets eliminated. knowledge of a risk always not amounts to consent. always not amounts to consent बोलना भी गलत. C gets eliminated. mere perception of existence of danger amounts to consent. Now option D says mere perception of existence of a danger amounts to consent. मतलब क्या कि खुद ने परसेप्ट कर लिया, ओपिनियन बना लिया कि यहां पर डेंजर है, एंड दैट अमाउंट्स टू कंसेंट. नो, दैट वुड नॉट बी अ करेक्ट. देयर शुड बी अ impliedness, or there should be express risk over there which we understand, which we acknowledge, which we understood कि बाबा हाँ यहाँ पे रिस्क है, and that is called as knowledge. knowledge की भी अपनी एक टर्म होता है. knowledge भी अपने एक आप में एक अलग से डिफाइन हो सकता है in the criminal law और in the law. so legally knowledge is something जो हमें समझ में आता हो, जो हम समझ सकते हो, देख सकते हो, या फिर जो कॉन्शियसली अंडरस्टैंड हो सकता है, दैट बिकम्स अ नॉलेज. तो वहां पर ऑप्शन ए वुड बी योर करेक्ट आंसर. Now coming to the next question. Lily had placed spring guns in the wood on her ground for a protection of garden. Karan, with the full knowledge that there were spring guns were somewhere in wood, trespassed on land of Lily and was injured. Which of the following statement is correct? Now यहाँ पे तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि खुद यहाँ पर करण ने जो है वो क्या किया है, अंदर वॉलंटरीली एंटर किया हुआ है, एंड इन दैट बेसिस उसको पता था कि लिली ने वहाँ पे स्प्रिंग गन्स फिट की हुई है, बट ऑल्सो नोन होने के बाद भी, मतलब नॉलेज होने के बाद भी वो खुद जा रहा है. दैट मीन्स व्हाट, ही हैज दैट नॉलेज. देखो यहाँ पे वो एग्जांपल भी हमें मिल गया प्रीवियस क्वेश्चन का. तो उसके पास नॉलेज था कि उसको पता था कि स्प्रिंग गन्स है, फिर भी वो ट्रेस पास कर रहा है इन दैट लैंड. तो दैट मीन्स व्हाट, ही कंसेंटेड फॉर द रिस्क, he given that consent for the risk. Now come to the options. Lily will be liable to pay compensation to Karan. No. Lily has not committed a tort against the Karan by exerting her right of a private defense. No, wrong. यहाँ पे right of a private defense नहीं होगा, और अगर होगा भी तो वो गलत तरीके से देखा जाएगा, बिकॉज करण ने खुद वहाँ पे एंटर किया हुआ है और वहाँ पे कोई भी right of private defense अवेलेबल नहीं हो सकता. Karan's case does not fall within a voluntary not with injuria. No, this would not be a right answer. Karan had a knowledge of a spring guns and willfully courted the danger himself. Yes, this would be the correct answer because उसको तो knowledge था and he willfully courted the danger himself. That means he consented for the risk, and that would be your right answer. Chalo, moving to the next question. Which of the following is not an element to claim the defense of voluntary not fit injuria? ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिस एलिमेंट की वजह से voluntary not fit injuria जो मैक्सिम है वो एज अ डिफेंस नहीं यूज किया जा सकता? प्रायर नॉलेज ऑफ प्लेंटिफ अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व, प्रायर नॉलेज ऑफ प्लेंटिफ अबाउट द रिस्क इन्वॉल्व. ओके, यहां पर ये जो है ये एक प्राइमरी एलिमेंट है अबाउट द वॉलंटरी नॉट फिट इंजूरिया, सो दिस वुड गेट एलिमिनेट. हमें तो वो चाहिए जो कि नहीं हो सकता. फ्री कंसेंट, ये भी एक प्राइमरी एलिमेंट है, इसको भी एलिमिनेट करो. प्लेंटिफ इज कंपेल्ड टू अग्री टू रिस्क बाय द डिफेंडेंट. यहां पे बोला है प्लेंटिफ इज कंपेल्ड टू अग्री. कंपेल्ड टू अग्री मतलब फोर्सफुली उससे अग्री करवाना. फ्री कंसेंट नहीं है, यहाँ पे इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर फोर्स यूज किया जा रहा है, कंपेल किया जा रहा है कि आप ये रिस्क लो. सो इन दैट केस दिस वुड बी योर probable answer. Option D को consider कर लो. Voluntary acceptance of a risk by the plaintiff, this would be the another element and similar to the A, so this gets eliminated. Option C would be your correct answer. So guys, this is of the legal aptitude of a tort. So you can solve like this, you can understand like this. आप इस तरीके से क्वेश्चंस को अप्रोच कर सकते हो, ये टेक्निक्स यूज कर सकते हो गाइज. यहाँ पर अगेन वही चीज़ आती है कि आपको थोड़ा बहुत या फिर थरो नॉलेज होना चाहिए अबाउट दी पर्टिकुलर लॉ. यू शुड रीड द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द लॉ, एंड while reading the passage you should understand what exactly the point of view of the author behind placing that particular legal principle and over that situation, why it is applying there, what is the conditions behind it, what are the elements behind it. All these things you should understand while reading and while analyzing the passage. So this much of the tort and legal aptitude of the tort. Thank you guys.